Good morning, students. Today we are going to discuss the main problems of Indian economy. What are the major problems which are which are blockading the Indian economy, progress of our economy? India got independence in 1947. Or that time the Indian economy was totally crippled under the British rule. Crippled means कि when the Britishers ruled over India, they have looted, they have robbed the Indian economy. Indian economy was in a very poor shape, in a very bad shape due to the British rule. After independence, at the time of independence, our masses were steeped in poverty. Our agriculture was not in a back gear and our industry was in a bad shape. Means everything was in a very poor shape. Nothing was in a good condition. Agriculture was also creeping. Industry was also in a very bad shape. And overall, the Indian economy was in a very poor condition. No doubt the problems were gigantic. Means that time the Indian economy was standing on the mound of many socio-economic problems such as poverty, unemployment. Everything was in a very miserable condition because the Britishers ruled over India about 200 years. The picture was indeed appealing and तो निश्चित रूप से the problems were very gigantic and the problems were innumerable problems were present in our country. The picture was indeed appealing and it required to the courage of conviction, the coolness of thinking and the unfailingly farsightedness. बहुत ज़रूरत थी हमारे देश के लिए, बहुत सही तरीके से सोचने की ज़रूरत थी इंडिया को प्रोग्रेस में लाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. The policy makers to come to grips with issues involved and gives the Indian economy a purposeful direction. Some of the challenges, problems facing the company's economies were as follows. So no doubt the problems were very large. That's why it was the biggest challenge for the policy makers to face the challenges. निश्चित रूप से तो कुछ जो प्रॉब्लम्स थे, कुछ जो चैलेंजेस थे, वो क्या थे, इन चैलेंज के बारे में यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं. At the time of independence, what were the problems, burning problems, इनका जिक्र हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे. तो निश्चित रूप से आप समझेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. फर्स्ट है लो लेवल्स ऑफ लिविंग.
निश्चित रूप से when the country was very poor, the population, the people of India was compelled to live a very miserable life. So there was not a good and appreciable level of living or standard of living. India has been, and even today आज तक एक दुनिया में एक बहुत ही इससे गरीब देश माना जा रहा है, अभी भी माना जाता है, क्योंकि आपका बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट्स हैं, हैप्पीनेस रिपोर्ट्स हैं, इसमें भारत बिल्कुल निचले पायदान पर है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट्स हो गया या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन सभी में बिल्कुल हम लोग बहुत पीछे के पायदान पर हैं 100 से। तो नो डाउट बहुत इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है आज भी। हाँ, निश्चित रूप से कुछ रिच लोग हैं, बट द कॉमन मासेज लीड अ वेरी मिजरेबल लाइफ। यू कैन नॉट जज the level of living or standard of living of the masses in India on the basis of some handful rich people. कुछ लोग हैं अमीर, बट जो masses है, हमारा वास्ट masses है, they are compelled to live a very miserable life. Half of the country's population lived below the poverty line. लगभग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिसको हम लोग बीपीएल भी कह सकते हैं। बीपीएल जरूर नाम सुने होंगे, बीपीएल, बिलो दी पॉवर्टी लाइन। क्या होता है बिलो दी पॉवर्टी लाइन, ये जो जानना है। ये गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी बसर करते हैं, दे आर कंपेल्ड टू, दे आर बीपीएल। इन इंडिया poverty is measured on the basis of calorie intake. कैलोरी इंटेक के आधार पर आज भी हमारे देश में गरीबी का मेजरमेंट किया जाता है। The people in the rural area, इस गांव में, if they are getting 2400 कैलोरी पर डे, कितना कैलोरी, लगभग 2400 कैलोरी पर डे। इफ ही और सी इज गेटिंग, दे आर एपीएल, उन्हें हम अबव दी पॉवर्टी लाइन कहते हैं। और जिन्हें नहीं मिलता है, दे आर कॉल्ड बीपीएल। तो ये जो स्टैंडर्ड है, जो क्राइटेरिया है, ये नॉट ओनली not for the urban area but for rural areas. रूरल एरियाज में गरीबी को मेजरमेंट करने के लिए लगभग 2400 कैलोरी पर डे होना रिक्वायर्ड है। जिन्हें मिल रहा है, दे आर एपीएल एबव दी पॉवर्टी लाइन, जिन्हें नहीं मिल रहा है, दे आर कॉल्ड बिलो दी पॉवर्टी लाइन। क्लियर हो गया? ये गांवों की बात है। अब शहर के लिए, इन अर्बन एरिया के लिए, सिटीज के लिए, मेट्रोस के लिए, अर्बन एरियाज के लिए, उनके लिए ये जो क्राइटेरिया है वो 2100 कैलोरी पर डे है। तो अर्बन में जिन्हें 2100 कैलोरी मिल रहा है पर डे, वो एपीएल है, एबव द पॉवर्टी लाइन है, और जिन्हें नहीं मिल रहा है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो on this basis the poverty line is determined in our country, in Indian economy. तो इस आधार पे the large mass of our population is compelled to live very miserable life. Their incomes were so insufficient, उनकी इनकम भी बहुत निम्न है। No doubt, if income will low, insufficient, they cannot buy even the basic needs or minimum requirements to
maintain his or her life. Means they are not capable to get the basic needs. To maintain his or her life, they have to sustain on margin. Means कि they are not getting basic requirements very easily. Next है quantity of goods available per head of population is meager. तो जो गुड्स हैं हमारे देश में, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत कम मिलते हैं लोगों के पर हेड, मतलब कि पर कैपिटा जिसको हम कहते हैं, पर हेड बहुत कम मिलते हैं. एंड द क्वालिटी इज इनवेरिएबली डिफरेंट. और क्वालिटी भी क्या है, अलग अलग है. लोगों की जीवन की क्वालिटी अलग अलग है. मीन्स क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिफर है. क्वांटिटी इज नॉट अवेलेबल and the quality is also different. Nutritional content of consumption is grossly inadequate. अब जो लोग पर डे कंज्यूम करते हैं, जो भोजन में कंज्यूम करते हैं, फूड में कंज्यूम करते हैं, तो देयर इज नो प्रॉपर न्यूट्रिशन इन देयर इनटेक फूड. डे टू डे में बहुत अच्छे से उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता. तो न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ कंजम्पशन इज ग्रॉसली इनएडिक्वेट. पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में नहीं है. एंड हंगर, स्टारवेशन एंड डिजीज आर फेयरली वाइड स्प्रेड. तो निश्चित रूप से यदि इफ द पीपल आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड एंड द फूड इज नॉट न्यूट्रिशनल, in that case they will be compelled to lead a very miserable life. वहाँ पे क्या होगा, हंगर होगा, स्टारवेशन होगा एंड डिजीज भी होगा, जो कि बहुत फैला हुआ है हमारे देश में. बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, न्यूट्रिशन की कमी, भूखमरी. तो ये सब के कारण दिक्कतें हैं. सेकेंड जो प्रॉब्लम है, दैट इज इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज. ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में. अनडाउटेडली जो हमारी पॉपुलेशन है वो रिसोर्स से मैच नहीं खाता है. जो रिसोर्स है हमारा और पॉपुलेशन दोनों में बैलेंस नहीं है, बड़ा इम्बैलेंसेस है, बड़ा गैप है दोनों में. The problem of poverty is essentially the problem of imbalance between the population and economic resources of the country. No doubt, undoubtedly, the population is very large, the resources are scarce. So there will be imbalance. While India has the second highest population in the world, you know that the most populated country of the world is China. And India's rank is second in terms of population. We are the second most populated country of the world. बहुत क्लियर है. बट इट्स रिसोर्सेज जैसे लैंड हो गया, मिनरल्स, कैपिटल्स एटसेट्रा आर नॉट एडिक्वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस टीमिंग मिलियंस. लेकिन हमारे देश में जो मिलियंस, जो लोग अरबों यानी लाखों करोड़ों लोग हमारे लोग हैं, उनके हिसाब से हमारे पास रिसोर्स की कमी है. ना हमारे पास उतनी लैंड है, ना हमारे पास मिनरल रिसोर्स है. तो जब मिनरल रिसोर्स नहीं है, लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करने में प्रॉब्लम्स होंगे. एंड व्हाट इज एडिंग टू आवर ऊज is that whereas our population is rising fast, और दूसरी तरफ की पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ रही है, we are having a very high growth rate of population. और दूसरी तरफ क्या है कि हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है बहुत हाई है,
लेकिन नॉट मेनी ऑफ आवर रिसोर्सेज कुड बी एक्सप्लॉइटेड फॉर वांट ऑफ एडिक्वेट कैपिटल। लेकिन जो रिसोर्स जो है हमारे यहाँ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो दैट रिसोर्सेज इज नॉट एक्सप्लॉइटेड। वाई वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग, वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज बिकॉज वी हैव नो कैपिटल। in case of in want of capital resources and investment, we are not in a position to explore the resources of my country. Means the population is rising very fast, but in lack of resources, particularly financial resources or capital resources, we are not in a position to explore the mineral resources or एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इससे क्या है कि एंड वाट एवर डेवलपमेंट एफर्ट वी मेक इट इज़ काउंटर बैलेंस्ड बाय द रैपिड राइज। अब होता क्या है कि एक तरफ हम थोड़ी बहुत तो कोशिश कर भी रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पर जो हमारा रैपिड राइजिंग पॉपुलेशन है ना, वो क्या करता है, इट इज़ ब्लॉकेडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री। पर कैपिटा इनकम एंड पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन लोअर। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पीसीआई पर कैपिटा इनकम और जो गुड्स हैं वो बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। ठीक, वो उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सुधार हो रहा है? क्योंकि ऑन द वन हैंड वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑन द अदर हैंड द पॉपुलेशन इज rising very fast. Population growth, rising growth is very fast. That's why this type of imbalances you will find in our country. थर्ड है स्लो मूविंग एग्रीकल्चर। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बड़ा स्लो है। मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप स्टैग्नेंसी देखेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखेंगे जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहे हैं, पर एग्रीकल्चर ग्रोथ बिल्कुल हमारा क्या है, स्लो है। तो स्टैग्नेशन है, यू विल फाइंड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट इज़ द बेन ऑफ द ब्रिटिश रूल। और ये दिक्कतें कहाँ से आई? ब्रिटिश रूल्स के समय से आई। कि बेन का मतलब होता है कि ये एक तरह से हमारे लिए अभिशाप बन गया। एग्रीकल्चर हैज़ बिकम द बेन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अभी बना हुआ है। कोई भी एक सीरियस एफर्ट्स नहीं लिए गए कभी भी कि कृषि को भी बढ़ाने हैं। मतलब कि हमने कृषि के ऊपर में हमारे यहाँ जोर नहीं दिया गया। द एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया वो निगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया। रेदर दे ब्राउट इन सम रीऑर्गेनाइजेशन इन दिस फील्ड नियरली टू मीट द रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट ऑफ देयर ओन इंडस्ट्री। तो ऐसे में क्या हुआ कि रेदर दे ब्राउट इन सम रीऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड दिस फील्ड। तो इसमें क्या हुआ कि रीऑर्गेनाइजेशन इस फील्ड में लाना था, मेयरली टू मीट द रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर ओन इंडस्ट्री। तो उनको क्या करना था कि अपनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए था। इंडिया के ब्रिटिशर्स को चाहिए था, उसने अपने इंडस्ट्री को फ्लोरिश करने के लिए, डेवलप कराने के लिए इंडिया से बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल्स ले गया। एंड फर्दर अंडर द ग्रोइंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन on one hand and lack of the investment on the other hand, Indian agriculture started showing distinct sign of decay. तो एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि बड़ा प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर इज एमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो कृषि को बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया उसके प्रोग्रेस के ऊपर में, एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर में। तो उसका जो आउटकम यही हुआ कि प्रोडक्टिविटी इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत लो रहा और शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा कम रहा, सबसे कम रहा। एंड द पैटर्न ऑफ इम्प्लीमेंट्स यूज्ड आर ऑल आउटमोटेड नियर बाय परसिस्टिंग स्टैग्नेशन इन द। और जो पैटर्न था हमारा एग्रीकल्चर का वो भी आउटमोडेड रहा, मतलब कि अपडेटेड नहीं रहा बिल्कुल। टेक्नोलॉजी या जो हमारा इक्विपमेंट्स थे बहुत पुराने थे। नतीजा क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बहुत ग्रोथ दिखाई नहीं दिया।
मीन्स की एग्रीकल्चर ग्रोथ वॉज टोटली इन अ वेरी stagnant condition. There was no improvement, there was no speed in the growth of Indian economy. फोर्थ है lopsided industrial structure. अब देखेंगे unbalanced and lopsided structure of Indian economy. Industry is again a legacy of the British rule in India. These rules never परमिटेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया. ऐसे में क्या हुआ कि कभी भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया के इकोनॉमी में इंडस्ट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए दे हैव नॉट डू एनी एफर्ट्स फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. इट मीन्स द इंडियन इंडस्ट्री वॉज टोटली नेग्लेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स. इनको दबा करके रखा गया. नॉर डिड दे इनकरेज द ग्रोथ ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री. और न ही हमारे देश में बड़े इंडस्ट्री लगाए गए हेवी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनका तो पर्पस था कि उनको तो रॉ मटेरियल्स चाहिए था यहाँ से, और वो अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर करके फिर उसको हमारे देश में जो तैयार माल है, मैन्युफैक्चर्ड माल है, उसको इस देश में खपाना था. तो फिर अगर वो ये सोचते कि अगर इंडिया का अगर इंडस्ट्री को बढ़ा देंगे तो फिर ब्रिटिश इंडस्ट्री का क्या होगा. That's why they totally neglected the Indian industries. इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर में उनका कोई ध्यान नहीं. हाँ, ये अलग बात है कि जब देश को आज़ादी मिली आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन द सेकेंड प्लान में बड़े बड़ी इंडस्ट्री जवाहरलाल नेहरू ने, चाहे तो ब्रिटिश के सहयोग से फिर आया, दुर्गापुर में इंडस्ट्री लगे, भिलाई में लगे, या फिर इस तरह से तो राउरकेला में लगा इंडस्ट्रीज़. तो हेवी इंडस्ट्री लगाए गए, ये प्रयास किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस. लेकिन इंडिपेंडेंस के पहले ये सब चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किया गया था. द पॉलिसी वाज सिंपली टू डेवलप दोज इंडस्ट्रीज विच वुड नेवर बी कम्पिटिटिव टू द ब्रिटिश. तो सिंपल सा बात है कि वह इंडस्ट्री क्यों ब्रिटिशर्स लगाएगा कि जिस इंडस्ट्री से फ्लरिश होने से, प्रॉस्पर होने से ब्रिटिश इंडस्ट्री को वो नुकसान कर सकता है, तो वो कंपटीशन में ला सकता है. इसलिए उसने सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्री के ऊपर में जोर दिया जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्री को टक्कर ना दे, उसको कम्पीट ना करे, उसके लिए खतरा ना बने. तो हमारे देश में ऐसे इंडस्ट्री खोले गए जो उनके लिए कभी समस्या ना हो. एंड दे ऑलवेज वांटेड अस टू बी डिपेंडेंट अपॉन ब्रिटेन फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हेवी इक्विपमेंट्स. We have already discussed the capital goods and heavy equipments के बारे में हमने चर्चा किया. तो ये ऐसे इंडिया को कंपेल करके रखा गया, ब्रिटिशर्स ने ऐसे रखा कि वो हम हमेशा ऑलवेज वी शुड रिलाई ऑन द या डिपेंड ऑन ब्रिटिश कंपनी की फॉर कैपिटल गुड्स एंड हेवी इक्विपमेंट्स. कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि जो पूंजीगत चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि कोई बसें हैं, कार हैं, गाड़ियां हैं, मोटर हैं, इन सब के लिए हमेशा हमें किस चीज़ पे, एयर कंडीशंस है, इसके लिए हमेशा हमें ब्रिटिशर्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा. हमें वहाँ से माल मंगाना है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हैं वो कैपिटल इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए. दस ओनली द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्यू कंज्यूमर गुड्स. लेकिन हमारे देश में थोड़े बहुत कंज्यूमर गुड्स के जो इंडस्ट्री थे वो चलाए गए, वॉज विटनेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल में जैसे कंज्यूमर गुड्स का मतलब खाने पीने का जो सामान होता है वो बनता है, वो कंज्यूमर गुड्स कहलाता है. एक तरह से वो पेरिसेबल गुड्स भी होता है. कैपिटल गुड्स का मतलब हो गया कि जो महंगी गुड्स हैं, सामान है, वो होता है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द हेवी इंडस्ट्रीज वर बाय एंड लार्ज कंस्पिक्यूअस बाय देयर एब्सेंस. दिस रिजल्ट इन एन अनबैलेंस्ड और लॉपसाइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया. तो ऐसे में क्या हुआ कि इम्बैलेंसेस हुआ, मतलब कि कुछ हमारे कंज्यूमर गुड्स के इंडस्ट्रीज तो खुले, बट बिग इंडस्ट्रीज वर नॉट ओपन देयर, नॉट एस्टैब्लिश देयर. कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन करने वाली जो चीज़ें थी वो हमारे यहाँ इस्टेब्लिश नहीं किया गया. इट वॉज द ड्रॉबैक फॉर द इंडियन इकोनॉमी. नेक्स्ट, फिफ्थ है लैक ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट. सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या होता है ये देखना है.
जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में बोला जाता है एसओसी। एसओसी बगैर एसओसी के, अगर एसओसी पे कोई भी कंट्री इम्फेसिस नहीं करेगा, अगर उस पर अगर वो ध्यान नहीं देता है, देन द ह्यूमन रिसोर्स विल नेवर बी डेवलप्ड। सो सोशल ओवरहेड कैपिटल कंप्राइज ऑफ सच इंडस्ट्रीज विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्री। इससे दूसरी इंडस्ट्री का भी विकास होता है। सोशल ओवरहेड कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज नाउ कॉल्ड इंक्लूड सच इंडस्ट्रीज लाइक रेलवे एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एटसेट्रा को क्या कहा जाता है? सोशल ओवरहेड कैपिटल कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर इज इसेंशियल टू परमिट ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्री। अब देखो कि अगर मान लो कि अनटिल और अनलेस अगर इन सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होता है, मीन्स इफ वी आर नॉट कैपेबल टू बिल्ड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एनर्जी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एटसेट्रा, development will not take place in our country. For the development of the economy, these are the infrastructure on which we can create a building of development in the economy. So in any economy, these infrastructures are mandatory to accelerate the growth and development of a country. So development of such infrastructure is essential to permit growth of other industries. मान लो कि अगर कोई खाने पीने का वस्तु, कोई कंज्यूमर गुड्स का इंडस्ट्री लगाने हो, या कोई एजुकेशनल हब हमें तैयार करने हो, या फिर अगर कैपिटल गुड्स का फैक्ट्री लगाने हो, वी नीड रोड्स कनेक्टिविटी, वी नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड्स बैंकिंग फैसिलिटी. So these are the components by which we can transform the economy. दुनिया की किसी भी इकोनॉमी के लिए ये चीज़ ज़रूरी होता है, तो गौर करेंगे फिर. Unfortunately not much attention was paid on this during the British rule. तो ब्रिटिश रूल में ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया, and consequently the development of industries in India remained slow and tardy. अब देखो आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होता है. कहा जाता है कि वह इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ होता है, टुवर्ड्स द टू बिकम द डेवलप्ड इकोनॉमी वेयर देयर इज मच मोर इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्टिकुलरली रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. वी लैक इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, दैट्स वाई वी कैनॉट ओपन न्यू इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं खुलेंगे. If we lack roads connectivity, we cannot send goods from one place to another place. In that case, the industrialization of the economy will be blocked, will be hindered. That's why we need good roads for smooth transportation of goods and services, and on the other hand we need electricity, power generation, capacity to open new industries and to increase the productivity of the country through industrialization. तो ये प्रॉब्लम्स थी हमारे देश में निश्चित रूप से. सेकेंड है वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट. अब बेरोजगारी भी है हमारे देश में. अनएम्प्लॉयमेंट निश्चित रूप से, बेरोजगारी तो रहेगा. अगर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं, बेहतर सड़कें नहीं हैं, तो इन दैट केस वी विल हैव टू बी अनएम्प्लॉयड. नो डाउट अनएम्प्लॉयड तो रहेंगे हम लोग. तो देखिएगा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑन द वन हैंड एंड अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर एंड स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द अदर. अब एक चीज़ बता रहे हैं कि हम सिर्फ ठीक है कि अच्छी बात है, ये बड़ी साधारण बात है कि वी कैन डिस्क्रेडिट द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट. निश्चित रूप से अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत मेजर फैक्टर है कि हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, इट इज़ वेरी 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 रैपिड. सो नोबडी कैन डिफेंड दिस
पॉइंट कि कोई इसको डिफेंड नहीं करेगा। निश्चित रूप से अनडाउटेडली द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज वेरी डेंजर फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी on the other hand. But the second main reason is that our agriculture sector is also underdeveloped and industrial growth is very poor and very low. That's why all these three factors are responsible for unemployment in India. If we are in a position to plan the population or to check the population, undoubtedly the number of unemployed person will decrease. On the other hand, we create employment opportunity in agriculture sector by modernizing the agriculture sector, and by opening new industries we can employ many more persons in these sectors, and undoubtedly the population will be employed and the number of unemployment will also decrease. That is why for the Indian economy we have to pay attention, or our policy makers should be attentive to these three major factors to create employment or to increase employment. First, the population, rapid growth of population, it should be checked, controlled or planned, or on the other hand the agriculture sector should be emphasized, and the third is new industries should be also opened. Only then we can check or we can mitigate the problem of unemployment in our country. As the population grows in the rural areas, हमारे देश में गाँव में पॉपुलेशन जब बढ़ती है, the pressure on agriculture, no doubt अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि गांव में खास करके प्रेशर कहाँ बनेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर पर बिकम एक्सेसिव। तो प्रेशर इतना बन जाएंगे कि बहुत लोग कृषि पर आश्रित होने लगेगा। द लिमिटेड, और लैंड क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है, लैंड इज लिमिटेड एंड द एब्सोल्यूट टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर डू नॉट ऑफर मच टू द एडिशनल वर्कर्स। तो अब क्या है कि जो obsolete techniques of agriculture do not offer much to the additional workers। तो हमारी जो टेक्निक्स हैं वो क्या है, बिल्कुल पुराने हैं। ऐसे में एग्रीकल्चर वो बहुत एडिशनल वर्कर्स को ऑफर नहीं करेगा। इसके कारण क्या होगा कि दी प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर डिक्लाइंस। तो जब हमारा जो टेक्निक ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड है, घिसा पिटा है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, जहाँ की बार बार बात आ रही है कि टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, तो ये मेंस में आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं जो लोग हैं या आप किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हैं देना जो एग्जामिनी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए सेम क्वेश्चन डील हो सकता है फॉर द इंडियन इकोनॉमी के लिए। हाँ, अगर स्टेट वाइज इकोनॉमी को देखा जाए तो फिर थोड़े से डिफर हो सकता है, बट अगर बीपीएससी के लोग खास करके हैं या यूपीपीएससी के लोग, तो उनके लिए ये सेम जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे लागू हो सकता है कि इन बिहार द एग्रीकल्चर सेक्टर इज आल्सो बैकवर्ड। हाँ, इन पंजाब एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी साउंड, इन वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी साउंड, बट इन बिहार द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी पुअर बिकॉज स्टिल today nowadays the agriculture technique is or technologies which are employed in agriculture sector is also poor and very obsolete, outdated technology, and that's why it is not multiplying the production of our country. That is why the agriculture sector is very backward and poor in our state, so it cannot create new employment or new employment opportunity. तो देखिएगा कि जब इनके प्रोडक्ट में, तो ऐसे में क्या होता है, डिक्लाइन और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक टर्म को आपको जानने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है बेरोजगारी। तो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है कि हैविंग क्वालिटी, हैविंग एबिलिटी and having interest
the person is not getting employment. If he or she wants to do work with his or her proper ability, quality, qualification, but there is no opportunity for employment and he or she is not getting employment opportunity in the economy, in that case we can say that this is unemployment. इससे हम बेरोजगारी कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर काम नहीं करना चाहें तो आप बेरोजगार नहीं हैं। पहले तो बेरोजगारी का डिफिनेशन जानना होगा। बेरोजगारी हम उसे कहते हैं कि जिसके पास योग्यता है, क्षमता भी है और करना भी चाहता है काम, बट द इकोनॉमी कैनॉट और देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर हिम और हर, इन दैट केस वी कैन से दिस इज द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर मान लो कि आपके अंदर योग्यता है बट आप काम करना नहीं चाहते, यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड। अगर आपके पास योग्यता नहीं है और काम करना चाहते, यू आर ऑल्सो नॉट अनएम्प्लॉयड। दोनों कंडीशन में अनएम्प्लॉयड का मतलब ही होता है कि इफ आई हैव क्वालिफिकेशन टू डू समथिंग एंड आई एम क्यूरियस टू डू समथिंग, आई एम इन सर्च ऑफ जॉब्स बट आई एम नॉट गेटिंग द जॉब, दिस वेरी कंडीशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? तो देखिएगा कि अब अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स क्या होता है ये गौर करेंगे। जैसे इन इंडिया जो अनएम्प्लॉयमेंट का रूप है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे देश के इकोनॉमी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, मतलब परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत जगह पे जो मशीनीकरण के कारण भी बहुत लोगों को बेरोजगार होना पड़ता है, न्यू टेक्नोलॉजी आता है तब ऐसे समय में बेरोजगार होना पड़ता है। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यू कैन एट प्रेजेंटली इट इज passing through the transformational phase where everything is being replaced. In that case you will find some unemployment, कुछ समय के लिए लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट होना पड़ता है। तो दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल, ढांचागत संरचनात्मक बेरोजगारी होता है। दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये एक हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि जैसे हमने डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। क्या होता है ये गौर करेंगे। अब मान लो कि अगर एकड़ ज़मीन 2 है, 2 एकड़ ज़मीन पे हम लोग, अगर आप कोई 4 भाई खेती कर रहा है और अगर वो एक ही व्यक्ति अगर उसमें खेती करके और प्रोडक्शन उतना कर ले और फिर 3 उस पर लग जाता है, मतलब कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जबकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है कुछ ज़्यादा, बल्कि सेम ही रहता है, स्टैग्नेंट रहता है। तो ऐसे में जो 2-3 लोग एक्स्ट्रा जो लगे हुए हैं वो क्या है, वहाँ पे एक तरह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। मतलब वो इन्वॉल्व है, दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर बट टेक्निकली दे आर कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। छिपी हुई बेरोजगारी वहाँ पे है। और भी सीजनल बेरोजगारी होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो चूंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बैकवर्ड है कि सीजन के कई महीने तो बेरोजगार रहना पड़ता है। अगर मान लो कि हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो, अगर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे रिसर्च हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, तो हम मल्टीपल क्रॉप्स उसमें खेती कर करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हैं, करा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। मान लो कि पैडी का सीजन में पैडी हो गया, फिर वेजिटेबल्स हो गया, जायद फसल को करो, फिर रबी फसल हो गया, तो सालों भर क्रॉप्स अगर आप उसमें उपजा सकते हैं तो ऐसा तब करेंगे व्हेन योर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इज साउंड। अगर आपके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर साउंड नहीं रहेगा तो आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमेशा लो रहेगा और यू विल बी डिक्टेटेड बाय द मानसून के हिसाब से आप चलेंगे। मानसून फेल तो एग्रीकल्चर फेल, मानसून पास तो एग्रीकल्चर फॉल्स। इसलिए आप जरूर पढ़े होंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल विद द मानसून। भारत की कृषि क्या है, मानसून के साथ एक जुआ है। यानी यहाँ जो एग्रीकल्चर है टोटली गाइडेड बाय द movement of monsoon. It depends on monsoon. Monsoon pass, agriculture pass, production pass. Good production, monsoon fail, bad production. तो the farmers are compelled to, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं है, कृषि पे जोर नहीं दिया गया। Some of the rural workers are attracted to the urban centers by the lure of higher wages and better living conditions prevailing. अब उसमें से बहुत सारे जो गांव के लोग होते हैं, रूरल पीपल होते हैं, वो शहर की ओर मूव करते हैं अर्बन सेंटर्स बाय, और उनको ये लगता है ल्योर ऑफ हायर वेजेस की उन्हें अच्छी मजदूरी मिलेगी,
गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलेगा और जो कि वहाँ होता है। बट द स्लो ऑफ इंडस्ट्री विच इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड जॉब, बट इन अर्बन एरिया द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज ऑल्सो स्लो. Our industry is not a position in a condition to provide employment to those people who are migrated from the rural India. So they all are not engaged or involved in the industrial sector because industrial sector is also in a very poor conditions. So बहुत ज़रूरी है कि हमारा industrial growth भी हो. For the balanced growth, the government should, the planning should be chalked out and the gap should be bridged up by. So on the one hand, agriculture sector should also be emphasis. On the second, in urban areas the industry sector is also emphasis. That's why the big gap between the rural and urban unemployed will be checked and will be bridged up. तो ध्यान देंगे, फेस टू एनी अपॉर्चुनिटी टू द माइग्रेंट लेबर. तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे इंडस्ट्री सेक्टर भी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो हम माइग्रेंट लेबर को अपना जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाती इंडस्ट्रीज़. यहाँ से भर भर के ट्रेन आप देखिए आके, ये तो देखने वाली चीज़ है कि कभी पटना जंक्शन पे जाइए, सहरसा पे जाइए, गया पे जाइए, कोई भी बड़े बड़े स्टेशन जहाँ पे हैं जंक्शन पे देखिएगा, जहाँ से दिल्ली की गाड़ी खुल रही है, कलकत्ता की गाड़ी खुल रही है. खास करके बिहार में ये चीज़ और है, दिक्कतें हैं. तो हमारे लोग जाते हैं, वो शहर में जाते हैं, गाँव से शहर में जाते हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं. आप पटना के शहर में देखिए या अन्य शहरों में देखिए कि बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज लेबर्स हैं जो गाँव से काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो बिल्डिंग रिपेयर में होते हैं या अपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो पर डे मजदूरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप आता है लोग को, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत लोगों को काम पर डे भी नहीं मिलता है. नतीजा क्या होता है, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतने लोग को हम वहाँ पे खपा सकें. दस एन एम्प्लॉयमेंट बिकम्स ऑल राउंड एंड परवेसिव इनकम्पासिंग द अर्बन एंड रूरल. तो ये है, इस प्रकार से जो अनएम्प्लॉयमेंट है पूरी में इतना ज़्यादा है कि अर्बन में भी है, रूरल एरिया में भी है, दोनों जगह है. ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ शहरों में है या सिर्फ गाँव में है, बल्कि इतना अधिक है अनएम्प्लॉयमेंट कि यू विल फाइंड विथ योर नेकेड आइज अनएम्प्लॉयमेंट scenery of unemployed people or unemployment in rural area also and in urban area also. So कि यहाँ पे ये दिक्कतें हैं. अब क्या दिक्कत है, अनलेस इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ पे क्यों है, अभी इनको कैसे समाधान किया जाएगा, इनको दूर कैसे किया जाएगा. तो दूर किया जाने के लिए भी एक लाइन दिया है कि द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम सीम्स टू बी बियॉन्ड रीच. कह रहा है कि ये सॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट का जो सॉल्यूशन है वो संभव तब तक नहीं है, हम बेरोजगारी की समस्या को से तब तक पार नहीं पाएंगे जब तक कि हमें क्या करना होगा, कि जब तक कि हम अनलेस इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ाते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी इतना बढ़ाएंगे जितने की पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है उस तुलना में, और दैट द पॉपुलेशन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग एट दैट फास्ट रेट. तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन है. निश्चित रूप से जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट है वो वेरी फास्ट है इन आवर कंट्री. तो उस रेट से तो हम निश्चित रूप से उतने इंडस्ट्रीज और जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेंगे, ये भी बात तय है. लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हम अगर जॉब अपॉर्चुनिटी उतना करा दें जितना कि ग्रोथ रेट है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को एम्प्लॉयड कराएंगे. ग्रोथ रेट किसका, पॉपुलेशन का. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. फिलहाल तो अभी देश में दिक्कत है. तो अच्छी बात यह है कि हमें जो फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, अगर हम उस पर उसको कंट्रोल करने की स्थिति में हो, अगर उसको चेक कर सकते हैं और उधर की इंडस्ट्री में या अन्य जगह पे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि वी विल हैव टू वर्क ऑन 2 लेग साइमल्टेनियसली. कब कहा जाता है कि हालांकि हर आदमी 2 ही पैर पे चलता है, लेकिन दोनों पैर का अलग मतलब होता है. पहला पैर ये होता है, पहला पैर सरकार को ये बढ़ाना चाहिए, ऐसी प्लानिंग बनानी चाहिए कि ताकि वो क्या हो कि पहले स्टेप पे, पहले लेग पे पहले वो फोकस ये होना चाहिए कि हाउ टू प्लान द पॉपुलेशन, हाउ टू चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाउ टू चेक मीन्स नॉट कि वो स्टॉप नहीं करने की बात कर रहे हैं. याद रखना है, जनसंख्या को स्टॉप करना वो नहीं बात कर रहे हैं, वो तो खैर अलग चीज़ है, वो नहीं हो सकता है.
पॉपुलेशन को एक ग्रोथ रेट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार को थोड़े से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मतलब फैमिली प्लानिंग के नॉर्म्स को अपनाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इसके लिए जो भी उपाय अपनाती है, चाहे जितने भी इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दो, दे लोग को इनकरेज करे सो दैट द पीपल विल बी अवेयर ऑफ द कंट्री एंड अवेयर ऑफ फॉर देमसेल्व्स एंड दे विल कंट्रोल एंड ट्राई टू चेक द पॉपुलेशन, प्लान द पॉपुलेशन। आज हमारे देश में हालांकि धीरे धीरे हो भी रहा है। इन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आर लिविंग इन इंडिया। आप देखें कि एजुकेटेड सेगमेंट में सोसाइटी में क्या हो रहा है कि इन चीज़ों को लोग समझ रहे हैं कि नहीं, हमें पॉपुलेशन, जो पढ़े लिखे, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके लेवल पे वो इस तरह के काम चल पड़े हैं। जैसे तमिलनाडु स्टेट है, आपका केरला स्टेट्स हैं, ये स्टेट समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन का जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके क्या साइड इफेक्ट है इंडियन इकोनॉमी पर या अपने के खुद की इकोनॉमी पे। पहले तो खुद भी अगर आदमी समझ ले कि मेरी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो जनरली लोग उसको धीरे धीरे चेक करें। हालांकि वो 2 दिन की भी बात नहीं है, 2 दिन में संभव नहीं है। और इंडिया में, चूंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट द चाइनीज इकोनॉमी, दैट्स वाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल जो होगा इंडिया के लिए आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो उसका एक दूसरा मतलब होता है। ऐसे उपाय किए गए थे पहले भी भारत में, लेकिन वो बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा। चाइना एक अलग देश है, चाइना के बारे में हम नहीं सोच सकते, चूँकि उनकी मॉडल अलग है, उनके डेवलपमेंट मॉडल अलग है, हमारे मॉडल अलग हैं। बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी हैव टू रेस्पेक्ट द कंसेंट ऑफ द पीपल। कोलम तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड बिलीव इन परसुएशन, नॉट इन कंपल्सन। परसुएशन, हाउ कैन वी परसुएट द पीपल टू चेक द पॉपुलेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और टू प्लान द फैमिली? तो बाय परसुएसिव मीन्स की बाय imparting knowledge, by imparting the benefits of the planned family, or what will be the impact of the control of or checking the population growth को, क्या इसके क्या impact और क्या benefits होंगे, इस चीज़ की knowledge को हमें impart करना होगा, हमारे देश के लोगों को बताना होगा। Only then they will know its side effect or its plus effect or its minus effect। तो हमें इनको क्या करना होगा? परसुएड करना होगा। दैट्स वाई कि पॉपुलेशन से रिलेटेड एजुकेशन में पॉपुलेशन के इम्पैक्ट को शुरू से डालना होगा। तो वो आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर में एक जनरेशन जब आगे निकल, तो दे विल नो व्हाई वी शुड चेक रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड व्हाट विल बी द आउटकम, इनको बताना होगा। तो निश्चित रूप से इस पर भी काम होना चाहिए। एंड दी पॉलिसी मेकर शुड कि उनको वो ट्राई करना होगा कि ऐसे कोशिश करने होंगे जिससे कि मैक्सिमम मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को बढ़ाना होगा कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करें अपने पॉपुलेशन को। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग टुडे इज ग्रिंडिंग पॉवर्टी, यानी गरीबी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा गरीबी है। पॉवर्टी निश्चित रूप से, हमने पहले भी बताया कि पॉवर्टी के लिए हमारे यहाँ मेजरमेंट के लिए वही 2400 कैलोरी गाँवों के लिए है और 2100 कैलोरी शहरों के लिए है। मतलब कि ये जो है वो मिनिमम एकदम है। मतलब कि सही मायने में इकोनॉमिस्ट का मानना है कि पॉवर्टी का तो ये डिफिनेशन बिल्कुल नहीं है, ये तो पेनरी का डिफिनेशन है। पॉवर्टी का डिफिनेशन तो ये होना चाहिए कि बेसिक नीड्स को होना चाहिए, कि बेसिक नीड्स का मतलब रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज आर नॉट गेटिंग बाय द पीपल, they are rich, they are poor people, they are below the poverty line, and who are getting, they are not below the poverty line, they are the APL। but in India, हमारे देश में जो है वो इस मॉडल को इस क्राइटेरिया के आधार पे पॉवर्टी का मेजरमेंट किया जाता है, जो कि एकदम मिनिमम है। अब देखेंगे, पॉवर्टी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द स्ट्रिक्टेस्ट फ्रॉम द शेप ऑफ इल क्लैड। अब देखेंगे आप कहाँ, इल क्लैड, सेमी स्टार्व्ड, deprived meeting of the rural masses who do not have the means of meeting of their barest minimum nutritional requirements। अब ये है कि जो सबसे न्यूनतम, बहुत मुश्किल से, बहुत किसी भी तरह से वो अपने 2 स्क्वायर मील को जुटा पाने में सक्षम हैं, वो गरीब हैं। ये स्थिति है कि आज भी आप देखेंगे कि जो आप रूरल मासेस में देखिएगा कि दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी इज जनरली फाउंड, ये पाए जाते हैं। पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल, यहाँ पे मेंशन है कि रूरल एरिया में
अब बनाया गया है इनके लिए डेली पर कैपिटा इंटेक कितना है, 2400 कैलोरी है इनके लिए, 2400 कैलोरी है दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे कि अर्बन पॉपुलेशन के लिए कितना है, तो लगभग 2100 कैलोरी। यानी आप सब कुछ जान लेंगे इससे, यानी यू विल बी अवेयर ऑफ दी थ्रू दिस lecture through this video you will know the real figure of real status of present Indian economy के बारे में आप जान लेंगे। The monetary expenditure on buying goods to provide this necessary calorie intake was placed at, इतना रुपये भी है और इतना रुपये दिया गया है, 356 और 578 रुपये अर्बन एरिया में, बेस्ड ऑन प्राइसेस प्रिवेलिंग इन 4 और 5 के हिसाब से। विद दिस पॉवर्टी लाइन अराउंड, इसके हिसाब से लगभग 302 मिलियन पर्सन जो हैं, यानी लगभग 27.5% अब टोटल पॉपुलेशन है जो लगभग गरीबी रेखा के नीचे है। तो निश्चित रूप से लाइन बाय 4 और 5 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से, by slightly widening the consumption basket to include minimum education and health requirements, the तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है shifted the poverty line to per capita monthly income। लेकिन ये सब तो स्टडी है बताया गया, लेकिन अभी हमारे यहाँ कैलोरी इंटेक को ही इसमें रखा गया है। ऑन दिस बेसिस, तो इस आधार पे लगभग 37% लोग पॉवर्टी में हैं। तो दोनों आंकड़े आपके सामने, और भी नए आंकड़े हम आपको देंगे जस्ट। उसके बाद अब फर्दर रिवीजन ऑफ तेंदुलकर रिवीजन में इसमें भी कुछ आया, तो 663-73। तो खैर ये जो ये डेटा है तो वो हमेशा अपडेट होते रहते हैं, मोटे तौर पे ध्यान देना। आगे राइजिंग प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन जो प्रॉब्लम्स हैं, तो जो इकोनॉमी में कुछ डाटा जो होता है ना, वो अवेलेबल जब हो जाए तो वो डेटा को हमेशा अपडेट करने की ज़रूरत है। कुछ पुराने जो डाटा है, वो बहुत पुराने भी डाटा काम करता है जब तक कि नया डाटा रिलीज ना हो, लेकिन जैसे ही नया डाटा रिलीज हो जाता है तो हमें उस नए डाटा को क्या करना है, अपडेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है राइजिंग प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। 8 जो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन इकोनॉमी का, राइजिंग प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन एक सिंपल मीनिंग होता है, जो प्राइस राइजिंग होता है वो इन्फ्लेशन होता है। लेकिन हालांकि इन्फ्लेशन के बहुत ब्रॉड मीनिंग्स होते हैं, जैसा कि हम लोग इन्फ्लेशन में आपको बताए हैं या फिर बताएंगे भी कि इन्फ्लेशन होता है क्या। इन्फ्लेशन, एवरी प्राइस राइजिंग इज इन्फ्लेशन, बट एवरी इन्फ्लेशन इज नॉट पेनफुल एंड अनजस्टिफाइड फॉर द इकोनॉमी। वो लेकिन अनदर मेजर इशू फेसिंग ये है कि हमारे देश में देखिए जनरल प्राइस लेवल हमेशा बढ़ते रहता है इनटू इन्फ्लेशन ओवर द पास्ट डिकेड। कई दशकों में देखा, आज भी देखेंगे महंगाई बढ़ी हुई है, बहुत महंगाई भारत के अंदर में है। अब उनके महंगाई के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों पे भी जाएंगे। तो महंगाई क्यों बढ़ती है, महंगाई क्यों हमें परेशान करता है? निश्चित रूप से तो लगातार अगर कीमतें बढ़ेंगी तो आपका सेविंग तो निश्चित रूप से घटेगा। द प्राइसेज स्टार्टेड राइजिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द आफ्टर द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार में। यानी हमारे देश में जो हिस्ट्री बता रहा है कि प्राइस राइजिंग का जो ट्रेंड हुआ, शुरुआत हुआ है, वो कहाँ से हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार से शुरू होता है। Soon the upheaval of partition added to the strain, and with minor fluctuations the prices kept on rising till बढ़ते रहा। Then the world oil crisis and the consequent rise। देखिए वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस भी, तेल का जो कीमत भी होता है वो खास करके इंडिया के इन्फ्लेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। As we know that India produces only 20% of total consumption of petroleums। पेट्रो प्रोडक्ट्स हम मात्र 20% करते हैं अपने पूरे कंजप्शन का, जितना हम कंजप्शन करते हैं, एंड द रेस्ट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्री। नो डाउट। तो ये बड़ा सिंपल है कि अगर, और आप आज आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, सुनते हैं हमेशा, इस चीज़ को बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं भी है, आप समझ जाएंगे कि कैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या ओपेक जब
एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ओपेक जैसे ही अपने पेट्रोल के प्राइस को बढ़ा देता है तो इंडिया में भी आप देखते हैं कि प्राइसेस तेल के बढ़ जाते हैं। अब तेल के प्राइस बढ़ने से फिर हमारे देश में जो गुड्स की कीमतें हैं, प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं, वह भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वाई? बिकॉज कि जो फ्रेट होता है, जो फेयर होता है, वो बढ़ जाता है, माल ढुलाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। दैट्स वाई द प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑल्सो इंक्रीज, एंड व्हेन द प्राइस इंक्रीज वी फेस सम डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, particularly those people whose income is limited and middle class and lower class, के लोग को दिक्कत होता है, चीज़ें दाम महंगी हो जाती है। तो एक प्रॉब्लम है। Consequently, rise in the prices of imports while brought in real inflationary trends in India। तो यूजुअली इंडिया में क्या होता है, ज़्यादातर हमेशा एक दबाव बना रहता है। क्या प्रेशर होता है? बिकॉज वी इम्पोर्ट ऑयल प्रोडक्ट्स, यूजुअली वी हैव नो production as per the requirements of the consumption. We have only 20% internal resources. We can get petroleum products and rest 80% is imported. So sometimes due to the price rising in the international market, inflation also increase in our country. The products or goods prices also increase. Sometimes it is coined as the imported inflation। तो कभी कभी इसे imported inflation की भी संज्ञा दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि imported inflation है। This inflation is not created by India itself. In India, the supply is appropriate according to demand. Supply of goods is sufficient, but due to increase in the price of petro products, the transportation charge also increase. That's why the prices will have to be increased. तो इस तरह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, मतलब महंगाई बढ़ जाती है। These are some of the problems of our economy and some of the issues calling for urgent development efforts। तो ये सब समस्याएं हमारे देश की इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, सम ऑफ द इश्यूज हैं कॉलिंग फॉर अर्जेंट डेवलपमेंट एफर्ट्स के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्लानिंग कमीशन। तो यू नो इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्लानिंग कमीशन थ्रू विच एनी डेवलपमेंटल वर्क इज बीइंग डन in our country. When India got freedom, there was no agency to transform or to develop my country. That is why the Planning Commission was chalked out on 15th March 1950। तो ये आपको याद रखने होंगे, नोट कर लेना है कि 15 मार्च 1950 को the Planning Commission came into existence। प्लानिंग कमीशन बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया हमारे देश में। अब योजना आयोग का काम क्या है वो तो हम लोग योजना आयोग में ज़्यादा बात करें, पर ये एक बहुत बड़ी इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट हुआ। ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव्स थी। हाउ टू, चूँकि देश मेरा था, अब देश आज़ाद हो गया था, तो एक ऐसे थिंक टैंक बनाना होगा, एक ऐसे बॉडी बनाना होगा दैट इज डेडिकेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री। फॉर दिस पर्पस many development, many planning proposal were presented। बहुत सारे इस तरह के प्रपोजल किए गए थे। इसकी चर्चा और हम डिटेल्स में जो अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे भारत की योजनाओं के बारे में, वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे प्रस्ताव आए कि हाउ टू डेवलप इंडिया, हाउ टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, हाउ टू फाइट विथ पॉवर्टी इन इंडिया, बहुत सारे। बट जो मेजर बात थी, तो अब अर्जेंट डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाया, जिसे योजना आयोग कहा जाता है, जो कि आज ये योजना आयोग का अस्तित्व खत्म हो गया है। इस सरकार ने, हाल की गवर्नमेंट ने योजना आयोग के जगह पे एनडीए गवर्नमेंट ने नीति आयोग को वो लाया है। मतलब ये योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा थिंक टैंक का काम करता है, तो
तो नीति आयोग करता है एड्रेस देमसेल्व्स टू द ग्रीन सिचुएशन प्रिवेलिंग इन इंडिया। भारत की सिचुएशन बहुत खराब थी, तो भाई अब इसको कौन एड्रेस करेगा? हु विल रिकॉग्नाइज द ग्रीन सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और कैसे इंडियन इकोनॉमी के उस ग्रीन, उस ब्लिक साइड को हम क्या करेंगे? ठीक करेंगे, चेक करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसके लिए प्लानिंग कमीशन आया और टू ग्रीन सिचुएशन प्रिवेलिंग इन इंडिया एंड अकॉर्डिंगली वर्कड आउट ए स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियाज 5 ईयर प्लान। और फिर क्या हुआ कि इसी योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना, मतलब कि 5 ईयर प्लान के मॉडल को अपनाया गया, पंचवर्षीय योजना के मॉडल को अपनाया गया। वी आर ऑलरेडी टू अचीव एज मच एज कैन बी डन वर्थ आर लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड। और हम लोगों ने उसके माध्यम से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो लक्ष्य थे, जो पूरा करने थे, जो टारगेट थे, उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश किया गया, क्योंकि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट द प्रॉब्लम्स आर अनलिमिटेड। Within the limited resources or fixed resources, we have to combat with the unlimited resources। इसको हमने किया और बहुत हद तक के प्लानिंग कमीशन अपने लक्ष्य में बहुत हद तक, हाँ ये हम नहीं कर सकते, हम फुली सेटिस्फाइड हो या ना हो अलग विषय है, पर प्लानिंग कमीशन के माध्यम से जो देश के अंदर आज 70-72 साल का जो डेवलपमेंट हुआ, जो भी आज़ादी के बाद से, वो प्लानिंग कमीशन के माध्यम से ही हुआ और बहुत हद तक ये अपने पर्पस में सफल भी रहा। क्लियर है? तो अब देखेंगे नया चीज़, नया टॉपिक क्या हमारा?